We are demystifying some words of the Bhagavad Gita. We are in a laboratory breaking the complex chemical compound into its simple components. Supposing you are given a compound called carbohydrate, which is one of the nutrients that we all consume, and your chemistry teacher asks you to break this carbohydrate complex and find out what are the simple elements which it is composed of. So there is a method, there is a protocol, there is a procedure. You have been told to do some positive test and some negative test. So first of all, he teaches you to do some test if this carbohydrate, when it is broken, does it contain nitrogen or not. So you do a negative test of nitrogen, which means you do a test and you find out that this carbohydrate does not contain nitrogen. Very good. Now the next step is to do a test to find out that this carbohydrate, when broken, contains carbon. So you do a test and the test is positive. So this carbohydrate contains carbon. So a good teacher uses a combination of negative and positive tests. He asks you to do a test for sulfur. You do a test for sulfur and you find out, no, carbohydrate does not contain sulfur. Negative for sulfur. Then he asks you to do the test for hydrogen. So hydrogen test is positive. So carbohydrate contains hydrogen. Then another positive test for oxygen. So oxygen is positive. So the carbohydrate contains carbon, hydrogen and oxygen. It does not contain nitrogen. It does not contain sulfur. Now that is the scientific way. That is the scientific approach. The carbohydrate is discovered hundreds of years ago. Everybody knows what does it contain. But what is the teacher teaching the student? Don't be biased. Don't assume the finding of the scientist. You do the test and you find out whether this carbohydrate today contains nitrogen and sulfur. And the student said, no sir, it does not contain. What does it contain? Sir, it contains carbon, hydrogen and oxygen. This is Dhyan Yoga. It's nothing to do with sitting in Padmasana, nothing to do in the darkness, nothing to do with the closed eyes, nothing to do with the Ishta Devata, nothing to do with... It is simple. If somebody wants to practice Dhyan Yoga, he has to be unbiased and he has to be constantly doing positive test and negative test. This is Dhyan Yoga today. 25th June 2022 version of Dhyan Yoga.
and it is interesting. We all like it. There is an experiment in it. Now the verse says, his mind being harmonized by yoga, he sees himself in all beings and all beings in himself. He sees the same in all. Who? This student of chemistry, this student of life, this student of truth, who is in the path of Dhyan Yoga means who is into a laboratory, who thinks life is a laboratory. So he, like a chemistry student in a senior level, like if you are a scientist or a researcher, most of the life would be inside the laboratory. So if you are serious about spirituality, if you are serious about using a ध्यान, मतलब जैसे कहते हैं ना, ध्यान से करो, ए भाई जरा देख के चलो, मीनिंग वही है, जिंदगी में जरा देख के चलो, ध्यान से जिंदगी बिताओ। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ध्यान नहीं है कि कभी कभी जब क्लब में से घूम के आ गए, जब पार्टीज अटेंड कर दी, जब सारी सोशलाइजेशन में मौज मस्ती, केयरलेसनेस, रेकलेसनेस, आलसी सब कर करा के आ गए, फिर 1 घंटा कमरा बंद करके ध्यान, भगवान के मैं ध्यान लगा रहा हूं। मतलब जनरली स्पीकिंग, you think of a 100 years life. So लोग क्या करते हैं, अगर वैसे पूरे 100 साल को देखा जाए तो by practicing ध्यान for 1 hour for 40 days, the student thinks he has earned a holiday now, where he will not practice ध्यान. किसी दिन ज्यादा ही मन शांत हो गया ना, फिर अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम डांस करने के लिए चले जाते हैं. And you know that you are dancing like that, it's not a Dhyan Yoga you are practicing, but you think you have deserved this non-Dhyan Yoga by practicing a little of Dhyan Yoga. जिंदगी हमारी ऐसे ही बीत रही है. अगर आप डीप अपने माइंड की गहराइयों में जाएं, यही हो रहा है. वैष्णो देवी क्यों जाते हैं? वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, बहुत बड़ा अमाउंट है, कहीं धोखा ना खा जाऊं, हे माता मुझे आशीर्वाद देना, मैं ठीक प्रॉपर्टी खरीदूं. लड़की की शादी करनी है, लड़का लंदन में होता है. अब ज़्यादा परिवार को जानते वानते नहीं है, पर अभी कर रहे हैं ठीक ठाक, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं. लंदन के लड़के के साथ इंडियन लड़की की शादी, शादी के बाद लड़की जिंदगी भर लंदन में. घर में पंडित जी को बुला के यज्ञ कराते हैं 15 दिन का. पंडित जी कहते हैं आप बालाजी जाओ, बालाजी के दर्शन, वहां से जो बालाजी सिद्ध जगह है, वहां एक बार आप चले जाओ. अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे की शादी करनी थी, तो वो बेटा और बहू का कुछ था, पता नहीं कहाँ का तीर्थ यात्रा पे गए. वो रोज खबर आती थी, आज वाराणसी में है, आज इलाहाबाद में है, आज बालाजी में है, आज शिरडी में है, आज इधर है. कितनी यात्राएं की.
पता नहीं, शायद बालाजी ने आशीर्वाद दिया, तेरी शादी तो ठीक ठाक होगी लेकिन तेरा फिल्मी कैरियर जो है वो डाउन चला जाएगा। आशीर्वाद तो देने वाले के ऊपर है, वो कोई भी आशीर्वाद दे। वो कहेगा दो दो चीजें मैं नहीं देता एक साथ। वो अमिताभ बच्चन ने मांगा ही नहीं था, उन्होंने कहा शादी कामयाब हो जाए, शादी कामयाब हो जाए। शादी कामयाब हो गई। तो ये ध्यान जो है ये हर समय की चीज है। पहली बात, ये कभी कभी वाली बात नहीं है साधना में। आइदर यू आर ऑन द पाथ ऑफ ध्यान और यू आर नॉट। मतलब आप यात्रा पे ही अगर जाओ, कोई दिल्ली से लद्दाख जाता है बाई रोड, तो ऐसे थोड़ी है, थोड़ी देर रोड पे, थोड़ी देर खेत पे, थोड़ी देर रोड पे, थोड़ी देर गांव में, थोड़ी देर रोड पे, थोड़ी देर शहर में, थोड़ी देर रोड पे, थोड़ी देर होटल में, थोड़ी देर रोड पे। ऐसे nobody reaches Ladakh. Once you are on road, you are on road to Ladakh. Then you can hope to reach Ladakh. वो भी अगर कहीं ट्रैफिक ना हुआ, लैंडस्लाइड ना हुई या कुछ ना हुआ, वो फैक्टर्स तो भी अलग है। तो ऐसे ही अगर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपने ध्यान योग का पाथ लिया है, तो आपको यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द रोड टू ध्यान, प्रैक्टिस ध्यान, टू मूव इन ध्यान। एंड आज के जमाने में ध्यान का मतलब है अनबायस्ड अप्रोच एंड अ रिसर्चर, नॉट ए ऑर्डिनरी अनबायस्ड, ए सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ अनबायसनेस, रिसर्चर। एंड आज का रिसर्चर है वो डबल टेस्ट करता है, पॉजिटिव टेस्ट भी करेगा, नेगेटिव भी टेस्ट करेगा। तब उसको कन्विक्शन होगी, मैं जब नॉन ध्यान में होता हूं तो भगवान के ज्यादा नजदीक होता हूं, या जब ध्यान में होता हूं तो मैं भगवान के ज्यादा नजदीक होता हूं। और उस डाटा को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। वो रिसर्चर लैब से बाहर नहीं चला जाता। जब वो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन का टेस्ट करता है, उसी जगह पे खड़ा होकर नाइट्रोजन का टेस्ट करता है और प्रूव करता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं है। इसी तरह हमको साधना में ही जो बातें हम करते हैं, ये देखने के लिए कि ध्यान की रेलेवेंस भगवत प्राप्ति में है कि नहीं, वो टेस्ट हमको साधना में खड़े खड़े ही करना होगा और उसको वॉच करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। पहले नाइट्रोजन का प्रिलिमिनरी टेस्ट नेगेटिव, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट also negative. So if the two tests are negative, that means nitrogen is not there. Similarly, carbohydrate में कार्बन का preliminary test positive, confirmatory test positive, therefore carbon is present in carbohydrate. दोनों पद्धतियों में कोई अंतर नहीं है। ये आज का साधक होगा, आधुनिक साधक, आज का साधक। ये कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं चलेगी। ऋषियों की तरह, मुनियों की तरह, गॉड रियलाइज सेंट्स की तरह बहुत लोग कहानियां करते हैं। रामकृष्ण परमहंस थे ना, वो समाधि में चले जाते थे। समाधि में उनको देवी उनके साथ बात करती थी, वो बस ऐसे खो जाते थे, हाथ ऐसे है तो ऐसे ही हो जाता था। श्री अरविंद जी तो 6 महीने तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। माता अमृतमयी माँ, वो तो नैनीताल में बोट में कीर्तन कीर्ते भव समाधि में खो जाती थी। हमारा क्या हाल है? हम तो मोह माया में खो जाते हैं। वो तो भव समाधि में खो जाती थी, हम तो
अटैचमेंट में ही खो जाते हैं, होते हैं दोनों। तो अपने को अगर रिसर्चर नहीं मानोगे तो बात नहीं बनेगी कि जो आनंदमयी माँ को बोट में नैनीताल में कीर्तन करते हुए जिस आनंद की प्राप्ति होती थी, वही आनंद मुझे यहाँ इस कार्य में प्राप्त हो रहा है। दिस इज द टेस्ट एंड यू विल हैव नो डाउट। आप तो सब रिसर्चर हैं, आप तो बद्री नारायण के दर्शन करके आए हैं। मैं सच्चिदानंद हूँ। यहाँ पर जब स्काइप क्लास में ये बात होती है, और जब आप बद्री नारायण के सामने खड़े थे मंदिर के अंदर, वो सच्चिदानंद में कोई डिफरेंस था बद्री नारायण वाले सच्चिदानंद में और यहाँ स्काइप वाले सच्चिदानंद में? एनीबडी, एनी वॉलंटरी कमेंट्स? वो तो फीलिंग तो सेम ही रहती है, वो तो जहाँ पर है वो तो चेंज होता ना। एक बार मान लीजिए कि सच्चिदानंद है तो वो तो यहाँ बद्री नारायण में वो तो बदलेगा नहीं। साइंटिस्ट नंबर 1, साइंटिस्ट नंबर 2, एकता जी। सेम फीलिंग थी जैसे यहाँ पे होती है और वहाँ पे मंदिर में अंदर बिल्कुल ऐसे ही अच्छी फीलिंग थी। साइंटिस्ट नंबर 3, स्वाति जी। Same, sir. No difference. So I'm not saying that next time you don't go to गंगोत्री। ये हमें रिसर्च करते रहना होगा। बात बिल्कुल वही है। जब आप इस सपोजिशन पे विश्वास नहीं रखते थे तब भी आप तीर्थ यात्राएं करते थे, और जब आप इस सपोजिशन में विश्वास रखते हैं तब भी आपको तीर्थ यात्रा करना चाहिए, लेकिन मोटिव फलक है। तब आप केयरलेस थे, आपको क्या नापना है आपको पता नहीं था क्या नापना। वहाँ नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ लाल धागा बांधते हैं, वह लाल धागा पेड़ पे बांधते हैं, वहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ से गंगा जल लाते हैं, वहाँ पे ये होता है, वहाँ ठहरने की जगह ऐसी होती है। वो सब अब कोई मायने नहीं रखते। अब हम क्या कर रहे हैं? ये सच्चिदानंद सर्वव्यापी है। दिल्ली में, बद्रीनारायण में, केदारनाथ में, गंगोत्री में, बालाजी में, शिरडी में, पुरी में, द्वारका में, रामेश्वरम में, एनी अदर प्लेस।